Hello everyone. So today we are going to start with the vectors and mathematical tools. This is the second day. Basically we'll be discussing vectors only. Vectors से आज सच कोई question नहीं आता है, but vectors का use almost हर जगह होता है. So that's why I thought of discussing vectors so that you get more comfortable with vectors in further applications of vectors. So every day we are going to discuss questions from different chapters. So if you think that it can help somebody, please share it so that it can reach to people who are actually in need of it. Let's start with vectors today. And yeah, the first question, the minimum number of vectors. Okay, before starting with the first question, I'd like to tell you that सबसे important point जो vectors में होता है वो होता है इसका visualization. That if you cannot visualize it, it will be very difficult to understand what exactly it is. So when it is written vector A और like magnitude of A और just A, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, मतलब उसको हम पिक्चराइज कैसे कर सकते हैं, उसको हम विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं. So I hope you know that, but still in the questions you will understand why the visualization is very important, because diagrammatically वो question बहुत आसानी से हो जाता है जो analytically बहुत मुश्किल से होता है, like बहुत lengthy खिंच जाता है. Coming on the very first question, the minimum number of vectors having different planes which can be added to give zero resultant is the minimum number of vectors having different planes. Remember, it is one important thing which they have mentioned, that the plane cannot be same. Say for example, this is one surface or one plane, so their planes cannot be same. If we take two vectors, any two vectors anywhere, imagine like say for example I have two vectors, like one vector is this and another vector is somewhat like this. Any two vectors, if I place anywhere in the universe, they will be coplanar. They will be in one single plane. Say for example, one vector is this, another vector is this. But a vector is a free concept. I can take one vector from one location to another location, कहीं पे भी लेके जाया जा सकता है, without changing its direction and magnitude. So इसको उठा के यहाँ पे लेके आएंगे तो there will be a plane. One single plane is being formed. So दो vectors का तो एक ही plane होता है, तो दो का जो option है वो तो वैसे ही rule out हो गया. मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट प्लेन्स, सारे के सारे वेक्टर्स अलग अलग प्लेन में होने चाहिए, दो तो नहीं हो सकते. कंसिडर थ्री. अगर मैं तीन वेक्टर्स लेता हूं तो देखो दो वेक्टर्स तो एक प्लेन में है, इनसे जो इसका रिजल्ट होगा, इनसे जो भी इसका रिजल्ट होगा वो इसी प्लेन में आएगा. दो वेक्टर्स जो दो वेक्टर्स का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हमेशा उसी पर्टिकुलर प्लेन के अंदर आएगा. सो अगर मैं एक तीसरा वेक्टर बनाता हूं जो इसके रिजल्ट को कैंसिल कर दे, सो उसके लिए मुझे एक तीसरा वेक्टर उसी प्लेन में बनाना पड़ेगा, तभी वो उसको कैंसिल कर सकता है. लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है दे हैव टू बी इन डिफरेंट प्लेन्स. सो अगर मैं एक तीसरा वेक्टर यहाँ पे फॉर्म करता हूँ, इसको कैंसिल तो कर देगा, तीन वेक्टर जीरो तो हो जाएंगे बट वो कोप्लेनर होंगे. सो अगेन तीन का भी ऑप्शन रूल आउट हो गया. सो दो नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते. चार, दिस इज एन ऑप्शन जहाँ पे आप ये कह सकते हो कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट प्लेन्स व्हिच कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्ट. यहाँ पे चारों के चारों डिफरेंट प्लेन में. अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा दैट जो ये CH4 वगैरह के स्ट्रक्चर्स जब आप बनाते हो तो ये बेसिकली जो बॉन्ड्स हैं या जो इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से फॉर्म होता है कि ये चारों वेक्टर्स एक दूसरे से सॉलिडिफाइड एंगल के साथ डिफरेंट होते हैं, मतलब सॉलिड एंगल में बटे हुए होते हैं. और इन चारों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा ये रिजल्टेंट जीरो आता है. ये सारे के सारे एक प्लेन में नहीं है, रिमेंबर दैट दे आर ऑल इन डिफरेंट प्लेन्स. और इनका जो नेट रिजल्ट होगा, दैट नेट रिजल्ट विल कम आउट टू बी एज जीरो. दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. सो द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स जो कि अलग अलग प्लेन में होंगे उनकी वैल्यू होनी चाहिए 4 एंड इट शुड बी सिमेट्रिकल ऑब्वियसली. सो मूविंग नेक्स्ट. यहाँ पे ये ध्यान रखना ये पॉइंट सेंटर में नहीं है, इट इज इन समवॉट लाइक अबव और कुछ 109 डिग्री जहाँ तक मुझे याद है कुछ ऐसा एंगल फॉर्म होता है. Anyway, moving on the next question, the sum and difference of two perpendicular vectors of equal length are. Sum and difference of two perpendicular vectors. Sum और difference का मतलब क्या होता है? So if I am saying that say for example this is a vector A, then minus A is just opposite. So ऐसा sum जैसा कुछ नहीं होता है, it's just like कि उसके negative vector के साथ उसका addition ही कर रहे हैं. So the sum and difference of two perpendicular vectors are equal in length. So say for example this is vector A, this is vector B, they are perpendicular as mentioned and इनका sum होगा कुछ ये according to parallelogram law of vector addition, this one. And they are saying इनका difference, so A minus B कितना होगा? तो if this is B then this will be minus B, this is going to be minus B. और इनका जो difference है
वो डिफरेंस होगा a माइनस बी, तो वो भी पैरेललोग्राम, बेसिकली माइनस भी एक नया वेक्टर है, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा दैट विल कम आउट टू बी समवेयर हियर, एंड दे आर सेइंग कि ये दोनों इक्वल है. The sum and difference of two perpendicular vectors of equal length. The sum and difference of two perpendicular vectors of equal length. मतलब magnitude of A और magnitude of B सेम है. Magnitude का मतलब होता है length. So इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, so इसका जो नेट रिजल्ट आएगा, अगर ये x है ये x है, तो ये √2x होगा. एज पर लाइक पाइथागोरस अगर आप अप्लाई करो तो सेम वे ये भी x है ये भी x है, तो ये भी √2x होगा. और जो √2x होगा, अगर ये इक्वल वेक्टर है तो 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा. सो यहाँ पे परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑफ इक्वल लेंथ, जो ये वाला वेक्टर होगा, यानी इसका जो रिजल्टेंट है, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, आर दे परपेंडिकुलर टू ईच अदर? So if this is 45, this will also be 45, so effectively they are also at 90 degree, and the length is also equal √2x. So perpendicular to each other and of equal length. This should be the correct answer. A. बाकी ऑप्शंस देखते हैं. perpendicular to each other and of different lengths, नहीं, length same है. of equal length and have an obtuse angle between them, no, angle is 90. of equal length and have an acute angle between them, no. So the only option left is A. Moving to the next question. A vector perpendicular to I plus j plus k is a vector perpendicular to, दो perpendicular vectors का जो dot product होता है वो zero होता है. A dot b is equals to 0. That is magnitude of A magnitude of B cos theta. That vanishes because theta is equals to 90 degree. यहाँ पे कह रहे हैं वेक्टर perpendicular to I plus j plus k is, इनमें से कौन सा वेक्टर इसके perpendicular है. सो एक तरीका तो ये है कि आप सारे के सारे ऑप्शंस को एक एक करके चेक करो. सो लेट्स डू दैट, एंड फॉर दैट वी हैव say like I cap plus j cap plus k cap. दिस इज 111 डॉट वट एवर इट इज़, यहाँ पे अब जो भी रिजल्ट आने वाला है. सो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो 1 into 1 बेसिकली करते कैसे हैं, अगर आपको याद होगा तो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर a है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और एक दूसरा वेक्टर b है पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप. तो जो इनका डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट, इससे जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर होगा, इट विल नॉट बी अ वेक्टर. सो ए डॉट बी जो आने वाला है दैट विल कम आउट टू बी एक्स पी. आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से, वाई क्यू प्लस जेड आर. इट्स अ नंबर, इट्स अ स्केलर वैल्यू, इट विल नॉट बी अ वेक्टर. सो अगर मैं यहाँ पे वैसे फटाफट चेक करें तो 1 - 1 0 हो गया और बचा 1, सो ये नहीं हो सकता. 1 - 1 अगेन 0 हो गया और -1, ये भी नहीं हो सकता. कमिंग हेयर 1 - 1 -1 -2 -3 नहीं, 3 2 3 2 5 -5 5 -5 0. So effectively D, this should be the correct result, क्योंकि बाकी सारे में से कोई ऑप्शन मैच कर ही नहीं रहा है. Okay, from figure 3.76 the correct relation is, okay, you must be knowing triangle and parallelogram law of vector addition. If this is A, this is another vector B, then A plus B C होता है, उस डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा होता है, ये ध्यान रखना. सो यहाँ पे मैं फर्स्ट रिलेशन चेक करता हूँ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0. ओके, देयर इज अनदर पॉलीगन लॉ कि चाहे कितने भी वेक्टर्स हों, अगर सबके हेड और टेल आपस में ऐसे ज्वाइंट है, तो फिर जो नेट रिजल्ट होगा वो हमेशा इनिशियल वेक्टर से फाइनल वेक्टर की तरफ पॉइंट करने वाला होगा, चाहे कितने वेक्टर्स हों, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. कमिंग ऑन दिस, a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी, यू कैन सी हेड टेल ज्वाइन हो रहे हैं, b प्लस e, ये वापस जाके वहीं पे मिल रहा है, तो इसका नेट रिजल्ट 0 ही होगा. यस करेक्ट. कोई भी कितने भी वेक्टर्स में अगर वो एक क्लोज्ड फिगर फॉर्म कर रहे हैं हेड टेल ज्वाइन करते हुए, तो उनका नेट रिजल्ट 0 होता है. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग ऑन, बी, सी माइनस डी इक्वल टू माइनस ए. दिस इज सी एंड दिस इज डी, बट माइनस डी क्या होगा, अ वेक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगेन हेड टेल ज्वाइन हो रहे हैं. सो दिस इज सी, दिस इज माइनस डी, एंड इसका जो नेट रिजल्ट होगा वो ये होगा इस डायरेक्शन में. तो अगर a उधर है तो माइनस ए इधर होगा. दिस इज c, दिस इज माइनस d. सो c माइनस डी इक्वल टू माइनस ए, ये भी करेक्ट रिजल्ट है. b प्लस ई माइनस, वैसे तो देखो अगर ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो यहीं पे करेक्ट हो गया, दो चेक करने के बाद तीसरे पे जाना ही नहीं है. b प्लस ई माइनस सी इक्वल टू माइनस डी. b प्लस ई इज नथिंग बट माइनस ए. इफ यू चेक, b प्लस ई इज नथिंग बट माइनस ए, और माइनस ए माइनस सी, माइनस ए माइनस सी. सो माइनस ए इधर है, माइनस सी विल बी दिस साइड, is going to be this, which is equal to minus d. That is also correct. So effectively मेरे पास जो ऑप्शन बना, that is all of the above. This is the correct result.
Moving on, out of the following set of forces, the resultant of which cannot be zero. Remember that जीरो रिजल्टेंट के लिए हमेशा ऐसा होना चाहिए कि दो वेक्टर्स का सम तीसरे के नेगेटिव के बराबर होना चाहिए, तभी वो कैंसिल होगा. मतलब बेसिक सी बात है, अगर मेरे पास तीन नंबर है x प्लस वाई प्लस जेड और फिर ये नंबर्स हैं, वेक्टर्स नहीं है, x प्लस वाई प्लस जेड, इनका सम जीरो करना है, तो कुछ भी हो जाए x और y हमेशा माइनस जेड के बराबर होगा, z और y हमेशा माइनस एक्स के बराबर होगा, और x और z हमेशा माइनस वाई के बराबर होगा. कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, 3 प्लस 10 माइनस 13, दिस इज जीरो. सो 10 माइनस 13 माइनस 3, 3 माइनस 13 माइनस 10, और 3 प्लस 10 13 माइनस 13 वैनिशेस. सो कोई भी आप केस लोगे, सो इफेक्टिवली दिस शुड बी द वैलिडेटेड रिजल्ट. अब और इनकी जो मिनिमम वैल्यू होगी दो वेक्टर्स की, वो हमेशा मतलब जीरो होगी, और फिर मैक्सिमम वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगी. ओके, मैक्सिमम वैल्यू उनका सम होगा. तो मेरे पास 10 10 10 के तीन वेक्टर्स हैं, सो इट कैन फॉर्म अ क्लोज फिगर, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जीरो हो जाएगा. क्लोज फिगर बनाते ही नेट रिजल्ट जीरो. 10 10 20, इवन इट कैन फॉर्म अ क्लोज्ड फिगर, लाइक एक तरफ आप 10 अज्यूम करो, दूसरी तरफ आप 10 अज्यूम करो, और दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल ले लो. से फॉर एग्जांपल ये 20 मान लो, यहाँ पे ये 10 और यहाँ पे ये 10. दिस कैन बी अ केस, दिस कैन आल्सो फॉर्म अ क्लोज्ड फिगर. दूसरे तरीके से आप ऐसे सोच सकते हो कि 10 10 का मैक्सिमम सम 20 हो रहा है ना, मैक्सिमम 20 है और ये 20 है, तो इस मैक्सिमम का ये 20 कैंसिल कर देगा, सो इफेक्टिवली जीरो. 10 20 20 20 20 का मैक्सिमम 40 है और मिनिमम जीरो है, तो जीरो और 40 के बीच में 10 लाई करता है, सो इफेक्टिवली ये भी पॉसिबल सिचुएशन है. 10 20 40, 20 और 40 का मैक्सिमम 60 है और मिनिमम 20 है 20, और यहाँ पे 10 है. सो जब 20 और 40 को मैं सम करूंगा तो मेरे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो 20 टू 60 के बीच में होगा, 20 टू 60 के बीच में होगा. 10 उसको कैंसिल ही नहीं कर पाएगा. जब 10 उसको कैंसिल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि 10 जो है वो उसके मिनिमम रिजल्ट से भी छोटा है, सो इफेक्टिवली दिस इज द ओनली ऑप्शन. बाकी आप किसी भी केस में आप ये अप्लाई करके देखो, रिजल्ट आ जाएगा. 10 10 का मैक्सिमम 20 होगा, मिनिमम जीरो होगा, तो जीरो और 20 के बीच में लाई करेगा, 10 वैलिड है. 10 10 का मैक्सिमम 20 होगा, मिनिमम जीरो होगा, 20 20 कैंसिल हो सकते हैं. 20 20 का मैक्सिमम 40 है, मिनिमम जीरो है, अगेन 10 सेटिस्फाई कर रहा है. कोई और एग्जाम्पल ले लो, 10 20 का मैक्सिमम 30 है, मिनिमम 10 है, 20 बीच में लाई कर रहा है, पॉसिबल है. The resultant of two vectors A and B is perpendicular to the vector A and its magnitude is equal to half of the magnitude of vector B. The angle, again I forgot to tell you, जब भी क्वेश्चन आए तो उसको पॉज करके कोशिश किया करो कि आप खुद सॉल्व करो पहले, फिर उसके बाद आप सोल्यूशन देखा करो. The resultant of two vectors A and B is perpendicular to the vector A and its magnitude is equal to half of the magnitude of vector B. डायग्राम भी दिया हुआ है. Resultant of two vectors A and B is perpendicular to the vector A and its magnitude is equal to half the magnitude of vector B. मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ होता है, रिमेंबर दैट, सिर्फ लेंथ. इसकी जो लेंथ है वो है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी. तो ये जो भी होगा इसका आधा ही है, तो अज्यूम करते हैं, से फॉर एग्जांपल ये एक है तो ये हाफ होगा. ओके, और फिर इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी के बीच का एंगल मुझे ये निकालना है. तो ये ट्राइंगल है मेरे पास, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्राइंगल है, और ये वैल्यू है मेरे पास अगर x, तो ये वैल्यू है x/2. मुझे ये एंगल चाहिए, तो अगर मैं यहाँ से ये कैलकुलेट करूँ, ये राइट एंगल है, तो फिर ये बनेगा cos बीटा इज इक्वल्स टू x/2/x. x कैंसिल हो गया, हाफ, सो बीटा कम्स आउट टू बी, हाँ cos हाफ होता है 60 पे. सो इफेक्टिवली मेरे पास नेट रिजल्ट आएगा 90 प्लस बीटा, दैट इज 150 डिग्रीज. दिस इज द करेक्ट रिजल्ट. The ratio of maximum and minimum magnitudes of the resultant of two forces A and B is 3:1. The ratio of maximum and minimum magnitudes, okay, maximum magnitude A plus B, जब वेक्टर साइन नहीं लगाया जा रहा है मतलब उसका वो मैग्नीट्यूड है. A plus B is maximum and minimum is A minus B. It can be B minus A as well, तो उसके रिस्पेक्ट में आप चेंज कर लेना. 3/1, it is 3:1. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू, मेरे से पूछा गया कि ए बताओ कितना है, ए को मुझे बी के टर्म में निकालना है, सॉल्व कर दो, रिलेशन आ जाएगा. ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 3a माइनस बी. इफेक्टिवली इट कम्स आउट टू बी एज 2a प्लस 2b, ये भी इस साइड जाएगा तो माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0. इज इट 3? oh sorry, my mistake. A plus b is equals to
3a minus 3b cross multiply. So if we have cross multiplying it, so effectively it becomes a plus b, और इधर से आया 3a, so minus 2a plus 4b is equals to 0, or 2a is equals to 4b. So a comes out to be 4 divided by 2b. This should be the result. Now a is equal to twice of b. Option B. Two forces each equal to F act as shown in the figure 3.78. The resultant is, इनका result बताना है. Okay. दो वेक्टर्स के बीच का एंगल उनके टेल्स या हेड्स के बीच का एंगल होता है. रिमेंबर दैट, हेड और टेल के बीच का एंगल नहीं होता. तो यहाँ F और F के बीच का एंगल 60 नहीं है. ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है. F का हेड है और इसका टेल है. सो F और F के बीच का एंगल 60 नहीं है. इट इज, मैं इस F को पिक करूंगा यहाँ से और फिर यहाँ पे प्लेस करूंगा, या इस F को प्लेस करूंगा इस तरफ, तो फिर मेरे पास जाके एंगल मिलेगा. तो लेट्स प्लेस दिस F इज देयर, और इस F को जब मैं यहाँ प्लेस करूंगा, डायरेक्शन चेंज नहीं किया, ध्यान रखना, जस्ट यहाँ से उठा के यहाँ रखा है, सो दैट लाइक दोनों का टेल्स मैच कर जाए. तो इफ दिस इज 60, ये पूरी एक लाइन है, सो इफेक्टिवली ये बना 120. तो दोनों के बीच का एंगल है 120. F और F के बीच का रिजल्टेंट निकालना है. टू फोर्सेज ईच ऑफ द रिजल्टेंट इज, रिमेंबर अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड लाइक A एंड A, सो इनका जो रिजल्ट होता है, वैसे किसी भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दिस यू नो, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया. ओके, तो अगर a और b दोनों एक, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की वैल्यू सेम है, सो जो इनका रिजल्ट होगा वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2a cos थीटा बाई 2. आता कहाँ से है, तो आप सिंपली इसके अंदर पुट करोगे a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, वहाँ से सॉल्व हो जाएगा. दूसरा मेथड भी है यहाँ पे कि आप इसे रिजॉल्व कर दो, if you know how to resolve it. So ये थीटा बाई 2 पे आ गया, this is a, so ये बना a cos थीटा बाई 2, और ऊपर आ गया a cos थीटा बाई 2. यहाँ पे चेक कहा जा रहा है. से फॉर एग्जांपल ये बना थीटा बाई 2, क्योंकि दोनों का रिजल्ट हाफ है. मतलब ऐसे समझो कि दो वेक्टर्स हैं, दोनों इस तरह से मूव कर रहे हैं, दोनों पे अगर इक्वल फोर्स लग रहा है तो बॉडी कहाँ जाएगी, बीच में ही जाएगी ना, दोनों के बीच में. सो ये अगर थीटा बाई 2 है, सो ये बना a cos थीटा बाई 2, और ये भी बना ये बना a sin थीटा बाई 2. सिमिलरली नीचे वाले को रिजॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा, a sin थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2a cos थीटा बाई 2 बच जाएगा. सो यहाँ पे मेरे पास FF के बीच का एंगल 120 है, तो नेट रिजल्ट होगा 2F cos 120 बाई 2, cos 60 हाफ होता है, सो बनेगा F. ये वैसे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के, उनका रिजल्ट सेम तभी होता है जब दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री होता है. Okay, vector A is 2 cm long and is 60 degree above the x-axis in the first quadrant. Vector B is 2 cm long and is 60 degree below the x-axis in the first quadrant. सबसे पहले तो quadrant बना लेते हैं और axis बना लेते हैं. तो imagine this is the situation. Vector A is 2 cm long, मतलब ये हो गया 2 cm long और 60 degree above the x-axis. This is 60 degrees. Imagine. And in the first quadrant, vector B is 2 cm long and is 60 degree below the x-axis in the fourth quadrant. So this is the fourth quadrant. Okay, cool enough. This is 60 degree. Now, देखो कॉमन सेंस कहता है कि अगर दो फोर्सेस एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 2 and 2, और 60 का एंगल भी बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो रिजल्टेंट है वो बीच में जाएगा. तो इसमें तो कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हो कि अच्छा रिजल्टेंट यहाँ जाएगा, मुझे नहीं पता कितना जाएगा, वो निकालना पड़ेगा. अच्छा, दोनों के बीच में एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट सेम ही होगा, 2 + 2 का नेट रिजल्ट विल कम आउट टू बी 2. सो दिस विल आल्सो बी 2, दैट इज फॉर श्योर. आगे क्या पूछा गया, द सम a + b, यही पूछा गया. दिस इज a, दिस इज b. द सम a + b इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2, दैट्स फॉर श्योर, अलोंग पॉजिटिव x-axis. 2 cm along positive y, 2 cm along positive x. This should be the correct answer. बाकी सब गलत है, रूल आउट हो जाएंगे. This is the correct result. 2 cm along positive x. सिर्फ डायग्राम देख के बता सकते हो, अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है. What is the angle between two vector forces of equal magnitude such that the resultant is 1/3 of either of the original forces? Okay. What is the angle between two vector forces of equal magnitude? दोनों के बीच का magnitude same है, equal magnitude. So say for example vector A इसका magnitude x है, vector B इसका magnitude भी x है. दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब दोनों की लेंथ सेम है, such that the resultant is 1/3 of the either of the original force. और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट 1/3 of the either of the original forces है.
अच्छा, दो इक्वल वेक्टर्स होते हैं, अगर दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने का तरीका, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है 2a cos थीटा बाई 2। आई जस्ट टोल्ड यू मोमेंट्स बैक, 2a cos थीटा बाई 2। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2a cos थीटा बाई 2, सो ये बनेगा 2x cos थीटा बाई 2। और कहा गया है कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो 1/3 है ईदर ऑफ द ओरिजिनल, मतलब 1/3x। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली, ये cos थीटा बाई 2 है, एंगल है, और जो रिजल्ट इससे निकल के आएगा वो आएगा थीटा इज इक्वल्स टू, और cos थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/6। So theta by 2 will come out to be as cos inverse 1/6, but theta by 2, so theta will come out to be, theta by 2 will come out to be cos inverse 1/6, and theta will come out to be 2 times of cos inverse 1/6। अब अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो मैथ्स, लेकिन आप पहले ऑप्शन देख लो तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑप्शन में कहीं पे भी cos इन्वर्स के साथ कोई टर्म नहीं है। अगर आप थीटा बाई टू से प्रोसीड करोगे तो हमेशा cos इन्वर्स के साथ ये 2 आएगा ही आएगा, क्योंकि एंगल हमेशा cos हटने के बाद ही खुलेगा। सो बेहतर तरीका ये है कि आप थीटा वाले रिजल्ट पे जाओ, मतलब यूज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या इस cos थीटा बाई 2 को आप यहीं कन्वर्ट कर लो। सो cos थीटा का फॉर्मूला होता है, और cos थीटा का रिजल्ट होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। दिस इज हाफ एंगल रिजल्ट, ये ट्रिको में पढ़ाया जाता है। सो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 is equals to nothing but 1 plus cos theta. So cos square theta by 2 is nothing but 1 plus cos theta by 2, and theta by 2 or cos theta by 2 is nothing but 1 plus cos theta by 2 raised to the power half, or iska under root. This is the case. So if I consider this, let's try to understand that मेरे पास रिजल्ट था यहाँ पे cos थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/6, cos थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/6। सो cos थीटा बाई 2 को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, नहीं क्या आया था 1 प्लस cos थीटा बाई 2, सॉरी ये रिजल्ट है cos थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/6। सो ये बनेगा 1 प्लस cos थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा बाई 2 raised to the power half is equals to 1/6, और it will come out to be as, ये दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 1 plus cos theta will come out to be as 1 plus cos theta by 2 is equals to 1/36 squaring, ये बना 18, और cos theta will come out to be as 1/18 minus 1, so minus 17/18, or theta will come out to be as cos inverse minus 17/18. This should be the result. I don't know what is the result. Yeah, cos inverse minus 17/18. एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे इसको चेंज करो। दूसरा तरीका ये है, आप इस रिजल्ट से चले जाते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स कॉस थीटा, यहाँ से सॉल्व करो तब भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा, इज इक्वल टू 1/3x। You can solve it, यहाँ से भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा, cos inverse minus 17/18। The angle between a plus b and a cross b, remember this, a plus b, कोई भी वेक्टर a और b का a plus b हमेशा a और b के प्लेन में ही होगा, it will be in the same plane। और ये ध्यान रखना that a cross b हमेशा a और b के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। So if this is a, this is b, then a cross b is going to be somewhat here, which is perpendicular to the plane of a and b, इन दोनों के perpendicular होगा, something like this। ये अगर a है ये b है, so a cross b will be like this, it will be perpendicular to this in this situation। so a plus b भी a और b के plane में ही है तो एंगल 90 डिग्री ही होगा, इसमें कुछ आज सच सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि a plus b यहीं आएगा। a और b के प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सब a cross b से 90 डिग्री पे होंगे। और ये ध्यान रखना दैट a क्रॉस b को ही एरिया वेक्टर कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है वो इससे फॉर्म होने वाले पैरेललोग्राम का एरिया देती है। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर r is equals to 3i cap plus j cap plus 2k cap on the xy plane has magnitude। आपसे xy प्लेन पे पूछा है, तो बेसिकली जब हम वेक्टर लिखते हैं 3i cap, इसका मतलब यही होता है कि 3 यूनिट्स x की तरफ, 1 यूनिट j की तरफ और 2 यूनिट्स k की तरफ। आपसे सिर्फ xy पे पूछा है तो x और y का कॉम्पोनेंट ले लो, बाकी छोड़ दो।
3 आई कैप प्लस जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √3² यानी 9 + 1 √10। दिस इज द रिजल्ट। जब एक्स वाई पे पूछा है तो सिर्फ आई और जे ले लिए, वाई जेड पे पूछा जाता तो जे और के ले लेते, सिर्फ एक्स पे पूछा जाता तो 3 कह देते। दैट इज द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब उसका कितना कंट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर प्लेन में। तो अगर एक्स एक्सिस पे पूछा है तो 3 है, वाई पे 1 है, जेड पे 2 है, 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल वेक्टर के सम के इंडिविजुअल वेक्टर के बराबर है। मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है और इसका रिजल्ट भी 2 ही है। सो अभी भी जस्ट हमने देखा था कि एंगल होना चाहिए 120, सॉरी, सो द रिजल्ट विल कम आउट टू बी 120। आप ऐसे भी सोच सकते हो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ए और बी का, तो आप रिजल्ट यूज कर सकते हो 2a cos θ/2 शुड बी इक्वल टू जो वैल्यू है उसके, सो a इक्वल टू दिस, तो cos θ/2 विल कम आउट टू बी एज हाफ, ये होता है cos 60, सो θ/2 विल कम आउट टू बी एज 60, theta will come out to be as 120 degrees. Oh, I have started writing in I don't know which language. Okay, if vectors, इसका क्या ऑप्शन होगा फिर, yeah 120 done. If vectors a is equals to I plus 2j plus 4k and b is equals to 5 I cap represent the two sides of a triangle, then the third side of the triangle can have length equal to, okay cool. If vectors a and b, दो vectors है मेरे पास, एक की वैल्यू एक a है, लेट्स से जो भी है, दूसरा b है, कहीं पे भी हो सकता है, लेट्स से यहाँ पे b, रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। ओके, अगर ये दो साइड रिप्रेजेंट करते हैं तो तीसरी साइड ये हो सकती है, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लो मैं b को उठा के यहाँ ले आऊँ, रिमेंबर दैट मैं b की डायरेक्शन नहीं बदल रहा हूँ, अभी भी मैंने सिर्फ b को मूव किया है। b को उठा के यहाँ ले आऊँ तो यहाँ से भी एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा, ये भी एक ट्राइंगल है। सो एक ऑप्शन तो ये बनता है, दूसरा ऑप्शन ये बनता है, यहाँ पे भी ये b ही है और ये a ही है और फिर ये इससे एक फॉर्म बन रही है। लेकिन एक्चुअल में अगर आपसे देखा जाए तो ये जो है ना, ये है a और इधर b, ये b है, ये a है, सो b इधर जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहे हैं b a, और इससे जो ये रिजल्ट बन रहा है ये है b प्लस ए, यानी कि a प्लस बी। बात एक ही है, जिसकी डायरेक्शन ये है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो अगर आप ऐसे लेना चाहो तो ये होगा a प्लस बी, b प्लस ए, समथिंग लाइक दिस। उल्टा कर दोगे तो माइनस ए माइनस बी। और जब इसकी अगर हम बात करें तो ये जो रिजल्ट है ना, ये बेसिकली है b माइनस ए, क्योंकि अगर आप a का नेगेटिव लो तो a का नेगेटिव ये है और इन दोनों का रिजल्ट होगा कुछ ही। अगर आप पैरेललोग्राम फॉर्म करो तो ये रिजल्ट बनेगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैंने इसको एक नंबर 1 वेक्टर कहा है तो a प्लस 1 इज इक्वल्स टू b, सो 1 विल कम आउट टू बी एज b माइनस ए। तो इफेक्टिवली ट्राइंगल फॉर्म करने के दो तरीके हैं, एक है a प्लस बी और दूसरा है a माइनस बी। दोनों का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, दोनों वेक्टर्स मुझे दिए हुए हैं, निकाल लो मैग्नीट्यूड। अगर a और b का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो a प्लस बी होगा 6 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, सिर्फ i ही एक एक्स्ट्रा है। सो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये बनेगा √6² प्लस 2² प्लस 4² इवेंचुअली कम्स आउट टू बी 36 प्लस 4 40 प्लस 16 56 √56। एक ऑप्शन तो हो गया, दिस इज द केस। दूसरा a माइनस बी चेक करते हैं तो a माइनस बी आएगा i माइनस 5i, मतलब -4i कैप प्लस 2j कैप सेम प्लस 4k कैप। इवेंचुअली इसका रिजल्ट बनेगा -4 का स्क्वायर यानी 16, मैं सीधा सॉल्व कर देता हूँ, √16 प्लस 4 प्लस 16, तो 16 16 16 16 32 32 प्लस 4 36 √36 6। So this should be the correct result. So A and B दोनों correct हैं, both of the above. This is the case. Given A1 is equals to 2, A2 is equals to 3 and A1 plus A2 is equals to 3. Okay. मुझे एक का मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड पता है और मुझे उनके रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड पता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 plus 2A2 डॉट 3A1 minus 4A2। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इस रिजल्ट को इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास आएगा 3A1 स्क्वायर
क्योंकि a1 डॉट a1 इज a1 स्क्वायर, क्योंकि a1 डॉट a1 होगा a1 cos 0, cos 0 इज 1, सो इफेक्टिवली वो a1 स्क्वायर हो गया. 3a1 स्क्वायर माइनस 4a1 डॉट a2, मुझे ये नहीं पता है, प्लस 2 a1 डॉट a2 और a2 डॉट a1 एक ही चीज होती है, यानी कि 6 a1 डॉट a2 माइनस 8 a2 स्क्वायर. मेरे पास a1 a2 तो है, तो मेरे पास 3 a1 स्क्वायर भी है, मेरे पास 8 a2 स्क्वायर भी है, बट मेरे पास प्लस 2 a1 डॉट a2 नहीं है. ये मुझे निकालना पड़ेगा. कैसे निकाल सकते हैं? लेट्स ट्राई. ओके, यहाँ से देखते हैं. मैंने अभी भी जस्ट आपको बताया a डॉट a और मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर एक ही चीज होती है, क्योंकि यहाँ से बनेगा a cos 0 इज 1. So I can write this as a1 plus a2 equal to 3. So इसका स्क्वायर विल बी 9, और इसको लिखा जा सकता है a1 plus a2 dot a1 plus a2 should be, yeah, yep. तो ये बनेगा a1 dot a1 यानी कि a1 स्क्वायर what happened writing here, ये बनेगा a1 डॉट a1 यानी कि a1 स्क्वायर प्लस a1 a2 दो बार आएंगे, सो 2 टाइम्स ऑफ a1 डॉट a2 और प्लस a2 स्क्वायर. a1 और a2 मुझे पता है कितना है, a1 और a2 हैं 2 और 3, सो इफेक्टिवली ये बना 4 प्लस 9, ये 9 प्लस 2 a1 डॉट a2 इज इक्वल्स टू 9. सो एक 9 से दूसरा 9 चला गया, सो 2 a1 डॉट a2 बना -4, 2 a1 डॉट a2 बना -4. सो a1 डॉट a2 की वैल्यू आएगी -2. ओके, सो दिस बिकम्स नाउ -2. अब ये -2 है, तो ये बना -2 इंटू 2 -4, 3 टाइम्स ऑफ a1 स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 4 12 माइनस 8 a2 स्क्वायर 9 72 प्लस -4, सो ये बना -76 प्लस 12, -76 प्लस 12 -64. This should be the result. 3 vectors ABC satisfy the relation a dot b equal to 0 and a dot c equal to 0. कहने का मतलब ये है जब a dot b equal to 0 है तो मतलब a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, a परपेंडिकुलर टू b, और a dot c equal to 0 है मतलब a परपेंडिकुलर टू c. Cool. The vector a is parallel to okay, पैरेलल टू b नहीं हो सकता क्योंकि अभी भी जस्ट लिखा है a परपेंडिकुलर टू b, सो गलत. c नहीं हो सकता क्योंकि a परपेंडिकुलर टू c. b डॉट c ये तो वेक्टर ही नहीं है. आई जस्ट टोल्ड यू डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है. स्केलर प्रोडक्ट का मतलब कि उससे जो रिजल्ट आएगा वो एक नंबर होगा, तो नंबर के पैरेलल कैसे हो सकता है, ये खुद भी गलत हो गया. तो एक ही ऑप्शन बचता है b क्रॉस c. फिर भी चेक कर लेते हैं. दिस इज द करेक्ट रिजल्ट. एंड एनीवे b क्रॉस c, देखो डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं फिर से. और b cross c, yeah, this is a, say for example this is some vector a, this is another vector b. now a b के परपेंडिकुलर है, a b के परपेंडिकुलर है और a c के भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये a है ये b है, a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. यहीं पे एक तीसरा वेक्टर ये जूम करते हैं c, सो दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू a, ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर है. सो अगर मैं b क्रॉस c लेता हूँ, ये b है ये c है, तो b क्रॉस c जब मैं लेता हूँ तो b क्रॉस c, आई विल हैव टू कर्ल माय फिंगर, होल्ड माय फिंगर ऑफ राइट हैंड टुवर्ड्स b, curl it towards c, it is coming out in this direction, that is parallel to a. That is correct. So that the only option which is left, that is D. If a equal to b plus c and the magnitude of ABC are 5, 4 and 3 units, okay, then the angle between a and c is, एक ना ये बहुत फेमस ट्रायंगल होता है, ध्यान रखना जब भी 3, 4, 5 की सिचुएशन है. 3, 4, 5, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल. जो नॉर्मली कहा जाता है कि जो एंगल बनता है वो बनता है
37 डिग्री और 53 डिग्री। ये फिजिक्स में बहुत फेमस ट्राइंगल है। 3 4 5 और अप्रॉक्सीमेट है, मतलब इतना इक्वल नहीं होता है। दिस इज अ ट्राइंगल। अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो √3² + 4² = 5²। ये वैलिडेट रिजल्ट है। अब ये 4 है, 4 के सामने वाला जो एंगल होगा वो बड़ा एंगल होगा, तो ये 53 है। और 3 के सामने वाला जो एंगल होगा वो छोटा एंगल होता है, तो ये होता है 37 डिग्री। और ये तो 90 है, सो 37, 53 और 90 ये एंगल होता है। A = B + C and the magnitude of ABC are 5, 4 and 3. So अगर मेरे पास ये सिचुएशन है, मैं फिर से एक बार ट्राइंगल फॉर्म करता हूँ। दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ये मुझे गिवन है। ओके, एंड A = B + C. A = B + C. Okay, तो imagine this as B, this is B, this is C, and here comes somewhat like A, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट ये होगा, तो दिस इज A, वेक्टर A। डायरेक्शन ध्यान रखना, A इधर जा रहा है, B इधर है, C इधर है, क्योंकि ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया तो B C इनका रिजल्ट ये होना चाहिए A। तो B + C = A गिवन है, मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं। देन द एंगल बिटवीन A एंड C इज, ये A है, ये A है, सॉरी ये A है और फिर ये C है, तो ये एंगल है, क्योंकि दोनों के हेड्स मीट कर रहे हैं ना। जब दोनों के हेड्स मीट करेंगे तो हेड और हेड के बीच का एंगल या टेल और टेल के बीच का एंगल परफेक्ट होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सो A और C के बीच का एंगल ये एंगल है। 3 4 5 के ट्रायंगल में ये एंगल अभी भी जस्ट मैंने आपको बताया 37। तो अगर ऑप्शन होता तो आप वैसे अप्लाई कर सकते थे, नहीं है तो cos थीटा निकाल लो। cos थीटा विल कम आउट टू बी बेस यानी कि 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 5। सो थीटा शुड कम आउट टू बी cos इनवर्स 4/5। ऑप्शन है बी इज द करेक्ट रिजल्ट। हाँ, given A = A cos theta I cap plus A sin theta j cap, vector B which is perpendicular to A is given by, फिर से डायग्राम, make a graph, this is first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, you know that। A cos theta I cap plus A sin theta j cap, assume like इसकी लेंथ A है और फिर ये थीटा है, so A is the vector which is clearly in the first quadrant, A cos theta I cap, this is the result, and this is A sin theta j cap। ये मेंशन है क्योंकि ये j डायरेक्शन में या I डायरेक्शन में। अ वेक्टर B which is perpendicular to A, अब B A के परपेंडिकुलर है, तो या तो ओके यहाँ पे इन्होंने एक और चीज Z यहाँ पे मेंशन नहीं है कहीं पे, मतलब K कैप नहीं है, तो मतलब I और J के प्लेन में ही होना चाहिए। तो मतलब A के परपेंडिकुलर या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। तो जब इधर होगा तो फिर I भी पॉजिटिव होगा, I पॉजिटिव होगा, J नेगेटिव होगा, I पॉजिटिव माइनस J, और जब इधर होगा तो -I होगा और +J होगा। या अब -I का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो मतलब -I ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, मतलब यही एक वेक्टर बचा, I पॉजिटिव J माइनस, I पॉजिटिव J माइनस। ओके, परपेंडिकुलर है तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा। जब ये थीटा है तो आप इसको कह सकते हो, इसके लेंथ अगर आप b एज्यूम करके चलते हो जो कि b है, सो फिर ये बनेगा b cos थीटा और इधर आएगा b sin थीटा। सो इवेंचुअली ये आ गया b sin थीटा I कैप माइनस b cos थीटा j कैप। आप ऐसे लिख सकते थे प्लस b cos थीटा माइनस j कैप, बट बात वही है, पता नहीं कौन सा ऑप्शन है, b इज द करेक्ट रिजल्ट। सो b शुड बी द आंसर हियर। Moving further, the angle which the vector A is equals to 2I cap plus 3J cap makes with the y-axis where I and J are unit vectors along x and y-axis respectively is। A का मुझे एंगल निकालना है, A जो है वो है 2I cap plus 3J cap makes with the y-axis, ये y के साथ कितना एंगल बनाता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 2 यूनिट्स है, ये 3 यूनिट्स है, ध्यान रखना, और ये A वेक्टर है, this is the vector A, 2 of I cap and 3 of J cap। क्या पूछा है,
where I and j are unit vectors along x and y axis respectively, the angle with the vector a makes with the y axis. मतलब ये एंगल पूछा है, कितना है निकाल लो. cos थीटा तो अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि ये नहीं पता हमें. हाइपोटेन्यूज पता है और फिर बेस पता है. cos अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल. सो जब cos अप्लाई करेंगे और इनफैक्ट ये 2 है तो ये निकाल सकते हो आप cos से. दैट इज ऑल्सो ऑप्शंस मेरे पास cos में भी हैं, tan में भी है, लेकिन ये जब होगा ये आएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इफेक्टिवली विल कम आउट टू बी 4 प्लस 9 रूट 13. रूट 13 से कोई ऑप्शन है नहीं तो फिर cos निकालने से फायदा नहीं है. tan थीटा 2/3, so theta will come out to be tan inverse 2/3. This is the correct answer. Given p is equals to 3 I cap minus 4 j cap, which of the following is perpendicular to p? 3 I cap minus 4 j cap, which of the following is perpendicular to p? डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, 0 आना चाहिए. परपेंडिकुलर का तो यही तरीका है. सो ये हो गया 3 3 जा 9 नहीं, 3 4 जा व्हाट, इट शुड कम आउट टू बी 3 3 जा 9 नहीं होगा, 3 2 4 जा 12 नहीं सॉरी j है, 4 4 जा 16 माइनस i वाला कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं होगा. इसकी बात करते हैं तो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, दिस इज 12 एंड दिस इज माइनस 12. सी इज द ऑप्शन. ये चेक करते हैं तो 3 4 जा 12 माइनस यहाँ पे भी माइनस है तो ये बनेगा प्लस 12, ये भी कैंसिल नहीं होगा. सो यही एक ऑप्शन बचता है सी. सो दैट इज द करेक्ट रिजल्ट. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, 0 आना चाहिए. और ये आई कैप माइनस 4 जे कैप फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. एग्जैक्टली. एक और तरीका है, अगर आप डायग्रामेटिकली सोचो तो 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो जो भी इसके परपेंडिकुलर होगा वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. थर्ड क्वाड्रेंट के लिए दोनों माइनस आई माइनस जे होने चाहिए, तो ये है नहीं. एक ही ऑप्शन बचता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दैट इज दिस वन, दोनों पॉजिटिव. डायग्राम्स और विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान हो जाता है उससे क्वेश्चन. इन गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर अ कार ट्रैवल्स 75 किलोमीटर नॉर्थ, 60 नॉर्थ वेस्ट, 20 ईस्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू सिटीज. बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ये. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये यूज होता है जनरली. फ्रॉम वन सिटी टू अनदर अ कार ट्रैवल्स 75 किलोमीटर नॉर्थ, दैट मीन्स 75 नॉर्थ, 75 नॉर्थ एंड 60 नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर, सो 60 नॉर्थ वेस्ट एंड 20 ईस्ट, ईस्ट मतलब इधर इफेक्टिवली राइट साइड में, सो 20 ईस्ट. दिस इज द केस. द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू सिटीज 1/√2 की वैल्यू आपको दी हुई है, मतलब कहीं ना कहीं यूज होगा. देखो इसका आसान तरीका होता है, पहले तो ग्राफ पे बना लो और सबके x और y कंपोनेंट्स निकाल लो, सबसे आसान होता है. ये हो गया 75 इधर चले गए, उसके बाद 60 इधर गए, नॉर्थ वेस्ट 60 इधर गए. सो इसका एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, दैट विल बी 60 cos 45 यानी कि 60/√2, और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा 60/√2 अगेन 60 sin 45. और फिर गए ईस्ट तो इस तरफ 20. तो इसका जो भी एक्सिस की तरफ है उनको छोड़ दो, बाकी जो भी एक्सिस से बाहर है उनके कंपोनेंट निकाल लो. तो अब x में सारी वैल्यूज कितनी है, एक ही है x में वैल्यू, दैट इज माइनस प्लस 20, इस तरफ जा रहे थे 20 यूनिट्स, दिस इज x समवेयर. और जो भी है टोटल यहाँ पे अगर बात की जाए 20 in this direction, east direction, right, northwest and 20 किलोमीटर ईस्ट, या करेक्ट. और फिर जो टोटल y में मूवमेंट, नहीं या सॉरी माय मिस्टेक, x में एक डायरेक्शन, एक तो 20 इधर चले और दूसरा ये जो है इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आ रहा है, दैट इज 60/√2, सो माइनस 60/√2. ये एक रिजल्ट होगा x का. y का होगा 75 ऊपर जा रहे हैं, 75 प्लस 60/√2 भी ऊपर ही जा रहे हैं. किया कुछ नहीं है, जो हम इस तरफ के डायरेक्शन में जा रहे थे उस इस तरफ के डायरेक्शन को दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया, एक y एक x. जो x वाला है वो x के साथ सब्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, तो 20 इधर था ईस्ट की तरफ और दूसरा ये इधर था वेस्ट की तरफ, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा इसे वेस्ट की तरफ भी लेके जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट है. इन द सेम वे जो ऊपर जाने वाला है यानी कि नॉर्थ वाला था उसका एक कॉम्पोनेंट 60/√2 और नीचे 75 उस तरफ ही, तो ये दोनों ऐड हो गए. मेरे पास x आ गया, मेरे पास y आ गया. तो अगर मैं x और y की बात करूँ तो अब जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा जो भी होगा दैट विल बी √x² + y². इट विल बी लाइक दिस.
दैट वट एवर इट इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सॉल्व कर लो। इसमें से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। -20 -60/√2, 60/√2 1/√2 0.7 दिया हुआ है, तो 60 इंटू 0.7 642 -42, तो ये बनेगा -22 एक, दूसरा ये बनेगा -22 अगेन, मतलब +22, 75 + 22 हो गया 75, 95, 97, 97 और -22 दोनों का स्क्वायर, जो भी इससे रिजल्ट आ रहा है वो निकाल लो, दैट विल बी द आंसर। Okay, what is the angle between A and B if A and B are the adjacent sides of parallelogram drawn from a common point and the area of parallelogram is AB/2? Area of parallelogram होता है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, A क्रॉस B होता है AB sin थीटा का मैग्नीट्यूड, AB sin थीटा होता है, और AB sin थीटा आपको दिया हुआ है AB/2, so AB sin थीटा is equals to AB/2, so AB कैंसिल हो गए, sin थीटा आया हाफ, वो होता है 30 डिग्री पे। यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल बिटवीन ए एंड बी है, यही पूछा है आपसे। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट a plus b is equals to a minus b, what is the angle between a and b? 90 डिग्री, you can visualize it। अगर दोनों वेक्टर्स a plus b और a minus b का रिजल्टेंट इक्वल है, हमने एक क्वेश्चन किया था पहले, तो उन दोनों के बीच का एंगल 90 होता है, something like this। A unit vector along the incident ray of light is I cap, the unit vector for the corresponding refracted ray of light is r dot n cap, r dot n cap vector, the unit vector for the corresponding refracted ray of light is r cap, okay, vector है, remember r dot n cap vector नहीं होता, so ये basically कहना चाहते हैं r, और ये full stop है। n cap, a unit vector normal to the boundary of the medium and directed towards the incident medium if mu is the refractive index, so basically I, r और n इनके individual refractive indices है, mu is the refractive index of the medium, then Snell's law is, अगर मेरे पास एक surface है, यहाँ पे इसका refractive index n है और यहाँ बाहर refractive index 1 है, ये मेरे पास एक ray of light आई जो कि normal के साथ I का angle form कर रही है, that is angle of incidence, और जब ये रिफ्रैक्ट हुई तो उसके बाद यहाँ चली गई, तो जो स्नेल्स लॉ होता है वो होगा 1 sin i, यानी कि sin i इज इक्वल्स टू n sin r, दिस शुड बी द स्नेल्स लॉ। तो ये वैलिड होना चाहिए किसी भी केस में, अगर बाहर का मीडियम 1 है, तो यहाँ पे इन्होंने एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, मतलब ऑटोमेटिकली ये वाला मीडियम 1 है मतलब एयर या वैक्यूम है। यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द बाउंड्री ऑफ द मीडियम एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इंसिडेंट मीडियम, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इंसिडेंट मीडियम, मतलब एन कैप ये है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इंसिडेंट मीडियम, एंड इफ म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू ओके यहाँ पे एन यूज नहीं करना चाहिए, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू साइन आर, देन स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, I cross n cap is equals to mu times n cap plus r, ओके, आई क्रॉस आई डॉट एन कैप, ये तो देखो नंबर बन गया एक, ठीक है, आई क्रॉस एन वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो ये रिजल्ट तो हो सकता है, आई डॉट एन कैप इक्वल टू म्यू आर डॉट एन कैप, ये भी हो सकता है, सॉरी दोनों तरफ स्केलर ही है, आई क्रॉस एन इज इक्वल्स टू म्यू आर क्रॉस एन कैप, ये भी हो सकता है, आई क्रॉस एन कैप इज इक्वल्स टू म्यू आर क्रॉस एन, ओके, ये एक एक करके चेक करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन लग नहीं रहा, एक सेकेंड, ये लास्ट के दोनों ऑप्शन सेम है, I cross n cap is equals to mu times r cross n cap, I cross n cap is equals to mu times r cross n cap, let's check this, I cap cross n cap is equals to mu times r cap cross n cap, I cap cross n cap होगा magnitude of I, यानी कि 1, magnitude of I cap 1 into 1 into sin आई और एन के बीच का एंगल, सो आई और एन के बीच का एंगल, सो साइन आई, बिकॉज आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल, दिस इज द थिंग, ओके, आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल आई नहीं है, दिस इज आई कैप, एंड ऊपर की तरफ एन कैप है, तो इसको उठा के यहाँ पे पिक करेंगे, तो फिर इसको उठा के अगर यहाँ रखें, ये आई कैप है, ये एन कैप है, इसको उठा के यहाँ रखेंगे, तो फिर ये बनेगा 180 माइनस आई,
लेकिन साइन में ठीक ही है, सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। म्यू आर कैप क्रॉस एन कैप, तो यानी कि म्यू 1 × 1 साइन आर और एन के बीच का एंगल। सो आर ये है, एन ऊपर की तरफ है, सो साइन 180 माइनस आर, अगेन साइन आर, सेम थिंग। सो ये बना साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू साइन आर, साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू साइन आर, करेक्ट। बट द पॉइंट इज कि सी और डी दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है। तो C is a nice result, D is also a nice result. Maybe the question is misprinted somewhere. Anyway, let's check this. I cross n is equals to mu n plus r. So I cross n, I, so ये बना 1 × 1 sin I और n के बीच का एंगल, अगेन 180 माइनस आई यानी sin I इज इक्वल्स टू म्यू n प्लस r, n कैप प्लस r, n कैप इज दिस r वेक्टर, चूँकि ये रे है तो फिर वो तो वैसे ही इन्फिनिटी होता है, तो n कैप प्लस r का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, कहीं यहाँ आएगा कोई एक नया वेक्टर, बट इट विल नेवर बी इक्वल टू साइन r, सो फर्स्ट तो नहीं हो सकता। I डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू म्यू r डॉट एन कैप, ये दोनों स्केलर रिजल्ट्स हैं। I डॉट एन कैप विल कम आउट टू बी एज cos, व्हाट I और n के बीच का एंगल, cos 180 माइनस I, cos 180 माइनस I, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सो माइनस कॉस आई इज इक्वल्स टू म्यू कॉस आर, दिस विल कम माइनस, सो इफेक्टिवली आएगा कॉस आई इज इक्वल्स टू म्यू कॉस आर, ये स्नेल्स लॉ नहीं होता है, सो इफेक्टिवली बी भी कैंसिल हो गया। 3 और 3rd और 4th मुझे नहीं पता, सेम दिया है शायद, क्वेश्चन के अंदर मिस प्रिंटिंग है, बट दिस शुड बी द करेक्ट रिजल्ट, यही होना चाहिए। Moving further, the resultant of 3 vectors 1, 2 and 3 units whose directions are those of the sides of an equilateral triangle is at an angle of, तीनों एक दूसरे के जो साइड्स हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है। 1 मैग्नीट्यूड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो फिर एंगल इनके बीच का 60 होगा यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड 2 है और तीसरे का मैग्नीट्यूड 3 है, तो देखो क्लोज फिगर तो नहीं बनेगी, ये तो फॉर श्योर है, ये 3 है। Okay, now if I continue this, like if I extend this somewhere, ये है, मान लो इसको मान लो फर्स्ट वेक्टर A, इसको मान लो सेकेंड वेक्टर B और इसको मान लो थर्ड वेक्टर C। 30 डिग्री विद द फर्स्ट वेक्टर, 15 डिग्री विद द फर्स्ट वेक्टर, मुझे निकालना क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, इन तीनों का रिजल्टेंट। तो अगर मैं पॉलीगन लॉ अप्लाई करूँ तो रिजल्टेंट तो ये होगा, जो इनिशियल वेक्टर था और जो फाइनल वेक्टर था इनको ज्वाइन कर दो, पॉइंटिंग फ्रॉम लाइक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये रिजल्टेंट है। बट इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है अब, टफ जॉब। दिस इज 60, दिस इज ऑल्सो 60, मतलब नहीं है, दिस इज ऑल्सो 60, दिस इज 120, दिस एंगल इज 120। अच्छा, अगर मैं इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लूँ तो फिर ये बना 1, ये बना 2, ये बना 1, ये तो 1 है ही, तो ये 2 2 2 का इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये है 120, ये है 1 और 1 दोनों, तो फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इफेक्टिवली ये 30 होगा और ये भी 30 होगा। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, फर्स्ट वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का एंगल, तो ये रिजल्टेंट है, ये फर्स्ट वेक्टर है, तो ये एंगल कितना है, दोनों के टेल टेल ज्वाइन हो रहे हैं, 150 डिग्री, 150 degree with the first vector. This is the option. Next, the angle between two vectors A and B is theta. The resultant of these vectors R makes an angle of theta by 2 with A, which of the following is true? The angle between two vectors A and B is theta. दो vectors के बीच का angle theta है. The resultant of these vectors R makes an angle of theta by 2 with the A. See, again it's the similar kind of question. दो vectors हैं, इनका जो resultant है वो रिजल्टेंट बीच में से जा रहा है, तो बीच में से वो तभी जाएगा रिजल्टेंट दो वेक्टर्स का जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है मतलब, एंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स ये थीटा बाई 2 के एंगल पे मूव कर रहा है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है मतलब ए इज इक्वल्स टू बी, दिस शुड बी द करेक्ट रिजल्ट। या 2 point masses 1 and 2 move with uniform velocities v1 and v2 respectively. Their initial position vectors are r1 and r2 respectively. Which of the following should be satisfied for the collision of the point masses? This is a nice question. कोलिजन का मतलब होता है कि सेम टाइम पे दोनों को एक जगह पे पहुंचना होगा, मतलब ऑब्वियसली बात है कि आप
दो लोग एक जगह से स्टार्ट किए या दो लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह से स्टार्ट किए, वो एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे, तो मिलने के लिए दोनों को उस पॉइंट तक बराबर टाइम में पहुंचना पड़ेगा। दैट इज द मस्ट थिंग। नाउ ये दोनों अलग अलग लोकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, सो लेट्स से प्लॉट अ ग्राफ फर्स्ट। Again, geometrical representation is very important. 2 point masses 1 and 2 move with uniform velocities. दोनों की velocity constant है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Their initial position vectors are r1 और r2. एक वेक्टर है इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज r1, मान लो ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, और दूसरे का इनिशियल पोजीशन वेक्टर है r2। कहने का मतलब ये दोनों यहाँ पे हैं अभी प्रेजेंट लोकेशन में, दोनों v1 v2 के कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। देयर इनिशियल पोजीशन वेक्टर्स आर दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी सैटिस्फाइड फॉर द कोलिजन। अब अज्यूम करो कि वो यहाँ जाके मिलते हैं, लेट्स से वो यहाँ जाके मिलते हैं। तो जब वो यहाँ जाके मिलते हैं तो जितने टाइम में फर्स्ट वाला वहाँ तक पहुँचेगा, जब ये v1 वेलोसिटी से चल रहा है तो मान लो ये t टाइम में यहाँ तक पहुँचा, तो इसको लगेगा v1 t टाइम। और सेकंड वाला जब यहाँ तक पहुँचा तो उसको भी उतने ही टाइम में पहुँचना पड़ेगा, तभी जाके दोनों मीट करेंगे, नहीं तो एक पहले पहुँच जाएगा दूसरा बाद, फिर वो वेट थोड़ी करेगा दूसरे का। सो v1t प्लस v2t। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इनके बीच में कॉमन रिजल्टेंट है जो सेंटर में जा रहा है, ये कुछ भी मान लेते हैं, लेट्स से इसको x मान लेते हैं। सो आई कैन से दैट x इज इक्वल्स टू r1 प्लस v1t एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू r2 प्लस v2t। एक रिलेशन आया मेरे पास, इन्होंने कुछ पूछा नहीं है, बस रिलेशन पूछा, तो मुझे रिलेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ एक तरीका निकालना पड़ता है कि कुछ तो मिले। r1 प्लस v1t इक्वल टू r2 प्लस v2t, इसको मैं लिख सकता हूँ r1 माइनस r2 इक्वल टू v2t माइनस और v2 माइनस v1t। या नाउ यहाँ पे मेरे पास r1 माइनस r2 और v2 माइनस v1 में, ये मेरे पास ठीक है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी ठीक है। ओके अगर मैं इनके यूनिट वेक्टर्स निकाल दूँ तो r1 माइनस r2 का यूनिट वेक्टर होगा r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस r2, और v1 माइनस v1 का यूनिट वेक्टर होगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v2 माइनस v1, और टाइम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, v2 माइनस v1 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा वहाँ पे, अगर मैं दोनों के यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि स्केलर से जब किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन पे फर्क नहीं पड़ता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो मैंने r1 माइनस r2 और v2 माइनस v1 की डायरेक्शन तो सेम ही है, दोनों के मैंने यूनिट वेक्टर्स निकाल दिए। तो यूनिट वेक्टर मतलब दोनों, एक वेक्टर ये है मान लो, दूसरा ये है, तो दोनों के यूनिट वेक्टर तो सेम ही होंगे ना, तो मैंने दोनों के यूनिट वेक्टर्स कैलकुलेट कर दिए। That will come out to be as v2 minus v1 divided by v2 minus v1. The first option is this, should be the correct one. यहाँ r2 minus r1 है, ये नहीं हो सकता, r2 minus r1 नहीं हो सकता, r2 plus r1 नहीं हो सकता। Moving. A vector a when added to the vector b, खत्म कब होंगे? Oh, thankfully. A vector a when added to the vector b yields a resultant vector that is in the positive y direction and has a magnitude equal to that of b. Find the magnitude of a. b है मेरे पास 3i cap plus 4j cap. This is b. Yields a resultant vector, जब इसको हम वेक्टर a when added to b, जब मैं a plus b करता हूँ तो मुझे एक नया वेक्टर मिलता है। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड होगा 5 अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो इफेक्टिवली बना मैग्नीट्यूड ऑफ b विल कम आउट टू बी रूट 9 प्लस 16 5, yes 25. A resultant vector that is in the positive y direction and has a magnitude equal to that of b. वेक्टर a when added to the vector b, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। yields a resultant vector that is in the positive y direction and has a magnitude equal to that of b. so जो a plus b का रिजल्टेंट है इसको मान लेते हैं ये है r। तो जो r के बारे में इन्होंने कहा है वो है r, a resultant vector that is in the positive y direction मतलब j cap and has a magnitude equal to that of b, magnitude of b यानी कि 5, so r is equals to 5 j cap। ठीक है, find the magnitude of a, निकाल लो। a will come out to be r minus b यानी कि 5j cap minus b यानी 3i cap minus 4j cap, so effectively ये बना minus 3i cap plus j cap, so root 3 square यानी minus 3 square that is same plus j cap 1 square, so effectively root 10. Yeah, correct. So this should be the correct result. Which of the following statements are correct? Which of the following statements are correct? Okay, multiple correct है।
द साइन ऑफ द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ d1 इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ, देखो सबसे पहले तो इसको डायग्राम को चेंज कर लेते हैं, एक्सटेंड करो, वेक्टर को उठा के कहीं से कहीं रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। तो d1 को तो यहीं रहने देते हैं, d2 को यहाँ से हटाते हैं, यहाँ रख लेते हैं, ये थोड़ा बेहतर रहेगा। दिस इज ओके, और इनके बीच में जो एंगल है वो है 90। कूल। द साइन ऑफ x component of d1 is positive and that of d2 is negative। d1 का x component इधर जाएगा, करेक्ट, और d2 का x component इधर जाएगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो इसका आएगा पॉजिटिव और इसका आएगा नेगेटिव, दैट इज फाइन। x component ध्यान रखना। द साइन ऑफ y component of d1 and d2 आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। d1 का y component ऊपर जाएगा, d2 का y component भी ऊपर ही जाएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ये नहीं होगा। द साइंस ऑफ x एंड y component of d1 plus d2 आर पॉजिटिव। d1 plus d2 कहीं इधर आएगा, d1 plus d2 will come out to be somewhat like here, this is d1 plus d2। अब the signs of x and y component of d1 plus d2 are positive। d1 plus d2 ये वेक्टर है, इसका x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, ये भी करेक्ट है। none of these, जब दो करेक्ट हो गए तो ये तो हो ही नहीं सकता। Two vectors a and b lie in one plane, vector c lies in a different plane than a plus b plus c। a और b एक प्लेन में है और c दूसरे प्लेन में लाई कर रहा है कहीं और, ये अलग प्लेन है। सो देन a plus b plus c cannot be zero। ओके, सी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि अगर दो वेक्टर्स तो एक प्लेन में होते ही हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, दो वेक्टर्स तो एक प्लेन में ही होते हैं। जब तीसरा वेक्टर हम लेके आएंगे तो थर्ड प्लेन में होगा, लेकिन वो थर्ड प्लेन वाला वेक्टर उन दोनों के रिजल्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, सेकंड प्लेन में होगा सॉरी, और फिर वो उनको कैंसिल नहीं कर सकता। अगर उसे कैंसिल करना है रिजल्ट को, तो उसे उसी प्लेन में होना पड़ेगा। सो तीन वेक्टर्स डिफरेंट प्लेन में रहते हुए कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, तो दे कैन नॉट बी जीरो। दिस इज वन थिंग। और दूसरी चीज़ ऐसे भी सोच सकते हो कि तीन वेक्टर्स जिसमें से दो एक प्लेन में और तीसरा एक डिफरेंट प्लेन में, ये तीनों कभी एक क्लोज फिगर बना ही नहीं सकते हैं, सो तब भी जीरो नहीं हो सकते। एनीवे, कैन नॉट बी जीरो, तो जब कैन बी जीरो तो हो ही नहीं सकता, जब कैन नॉट बी जीरो है तो। लाइज इन द प्लेन ऑफ ए और बी, लाइज इन द प्लेन ऑफ ए और बी नहीं, ए बी, ए प्लस बी का रिजल्टेंट ए प्लस बी यहाँ लाई करेगा, और जो भी वेक्टर c मेरे पास है जो तीसरे प्लेन में, तो c और a प्लस बी की जब हम बात करेंगे रिजल्टेंट लेंगे, तो वो किसी और प्लेन में लाई करेगा, वो a और b के प्लेन में लाई नहीं करेगा। सो लाइज इन द प्लेन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एनी ऑफ द थ्री वेक्टर्स, एग्जैक्टली दैट शुड बी द करेक्ट रिजल्ट। सो द आंसर इज a and d। Okay, yeah, so these were few questions related to vectors। बेसिकली वेक्टर्स की ज़्यादातर इंपॉर्टेंट, मतलब ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है। दूसरा तो फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, वो आपने मैथ्स में पढ़ा ही है 11th-12th में। Anyway, so this was the like end of whatever we were discussing today, that was questions। If you need more questions to practice on vectors or units and dimension and all, you can email it to me, I will get to you, I'll get back to you। Other thing is that if you think that every day doing these questions are going to help you or help somebody in any other way, then please share it. Thanks a lot for watching. Have a good day.